ஆதியாகமம் முதலாம் அதிகாரத்திலே முதல் 2 அதிகாரங்களிலே படைப்பின் வரலாற்றை நாம் பார்க்கிறோம். और उत्पत्ति के पहले 2 अध्याय में हम सृष्टि की वर्णन के बारे में देखते हैं। அதிலே குறிப்பாக முதலாம் அதிகாரத்தில் ஒவ்வொரு நாளிலும் ஒவ்வொரு விதமான படைப்புகளை ஆண்டவர் நிறைவேற்றி இறுதியில் 7வது நாளில் ஓய்ந்திருப்பதாக நாம் வாசிக்கிறோம். और हम पहले अध्याय में देखते हैं प्रतिदिन जो है परमेश्वर कुछ ना कुछ सृजन करते हैं, उसके बाद 7वें दिन वो आराम फरमाते हैं। இந்த படைப்பின் வரலாற்றை நாம் படித்து வரும்போது ஆதியாகமம் முதலாம் அதிகாரத்திலே திரும்ப திரும்ப சில வார்த்தைகள் வருவதை நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள். और जैसे हम इस वर्णन के बारे में, सृष्टि के वर्णन के बारे में पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार-बार इसमें दोहराया गया है। அப்படிப்பட்ட திரும்ப திரும்ப வரக்கூடிய வார்த்தைகளில் ஒன்று என்று கண்டார், நல்லது என்று கண்டார் என்று நாம் வாசிக்க முடியும். ऐसे ही बीच-बीच में जब वो बोलते दोहराए हुए जो शब्दों में से एक शब्द है कि परमेश्वर ने देखा कि ये भला है। தான் படைத்த ஒவ்வொரு நாள் படைப்பையும் ஆண்டவர் பார்த்து உலகாங்கிதம் அடைகிறார், மகிழ்ச்சி அடைகிறார், நல்லது என்று கண்டு காண்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம். और प्रतिदिन परमेश्वर कुछ ना कुछ सृजन करते हैं, उसके बाद अपनी सृष्टि को देखकर वो आनंदित होते हैं और कहते हैं कि ये अच्छा है, ये भला है। ஆனால் ஒரு நாள் படைப்பை பற்றி விவரித்து வரும்போது தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார் என்று நாம் வாசிப்பதில்லை. लेकिन एक दिन जो उन्होंने जो सृष्टि की थी, उस अपनी सृष्टि को देखने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये भला है। देखते हैं दूसरे दिन जो उन्होंने सृष्टि की थी, அந்த 2வது நாளில் அப்படி என்ன செய்தார் ஆண்டவர், என்ன படைத்தார்? ऐसे दूसरे दिन परमेश्वर ने क्या ऐसे सृष्टि का वर्णन किया था? மேலே இருக்கும் ஜலத்தையும் கீழே இருக்கும் ஜலத்தையும் இரண்டாக பிரித்து இரண்டுக்கு நடுவில் ஆகாய விரிவை ஏற்படுத்தினார். परमेश्वर ने आकाश के नीचे का जल का स्थान को और इकट्ठा होते हुए और सूखी भूमि को उन्होंने दिखाया था, और वैसे ही उन्होंने उन दोनों को अलग की। जो स्थान है उसको उन्होंने अंतर को जो अंतर उन्होंने दिखाया था, उसके लिए उन्होंने आकाश कहा। இந்த செயல்தான் 2வது நாளிலே நடந்திருக்கிறது. இதை तो ये जो दूसरे दिन उन्होंने जो ये आकाश और जो पृथ्वी की रची थी, इन दोनों चीजों को देखने के बाद परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि ये चीज भला है या अच्छा है। மற்ற தினங்களை எல்லாம் நல்லது என்று கண்டார் என்று சொல்லும்போது இந்த இடத்தில் மட்டும் அதை சொல்லாமல் இருப்பதற்கு என்ன காரணம் என்று நியாயமாக நம்முடைய மனதில் கேள்வி எழும்புகிறது. दूसरे सृष्टि को सृजने के बाद जो है परमेश्वर कहते हैं कि ये देखकर ये अच्छा है, लेकिन ये जब इन दोनों चीजों को बनाया था तो सवाल उठता है कि परमेश्वर ने क्यों नहीं कहा था कि ये अच्छा है। அதிலே அப்படி யோசிக்கும் போது ஒரு சிந்தனை என்னுடைய மனதில் வந்தது. ऐसा जब मैं सोच रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया, ஆண்டவர் எல்லாம் அறிந்தவர், परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। பல்லாண்டுகளுக்கு பின்னால், பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் நடைபெறப் போகிற சம்பவத்தையும் நிகழ்காலத்திலே காணக்கூடியவர் ஆண்டவர். परमेश्वर सर्वव्यापी है और भविष्य में होने वाली सारी घटनाओं को वर्तमान में देखने की क्षमता रखने वाला परमेश्वर है। அப்போ அவருடைய பார்வையில் ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரிகிறது. तो उनके नजर में एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है। இந்த 2வது நாள் படைப்பில் தண்ணீரை மேலும் கீழுமாக இரண்டாக பிரிக்கிறோம். இதற்கு இடையில் ஆகாய விரிவை ஏற்படுத்துகிறோம். இது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் முதலாவதாக பூமிக்கு அனுப்பப்படும் போது மனிதனுடைய அழிவுக்காகவே இது பயன்பட போகிறது என்பதை தம்முடைய தெய்வீக அறிவில் முன்னதாக அறிந்தார்.
जब परमेश्वर ने देखा कि जब उन्होंने जल के ऊपर और फिर जल को अलग कर कर उन्होंने दिखाया और फिर आकाश और पृथ्वी को जब उन्होंने अलग किया था, तब वो जानते थे कि ये सब कुछ जो सृजा गया है मनुष्य के लिए सृजा गया है और ये एक दिन अवश्य नष्ट होगा। பூமியிலே மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பெருகினது. தேவன் மனிதனை ஜலப்பிரளயத்தினால் அழித்தார். और वैसे ही जो है मनुष्य का पाप इस धरती पर बढ़ता गया, उसके बाद उन्होंने जल प्रलय से इस पृथ्वी को नष्ट किया। அதுவரை பூமியிலே மழை பெய்ததில்லை. तब तक जो है पृथ्वी पर बारिश नाम का कोई निशान ही नहीं था। முதலாவதாக மழை பெய்தது அப்பொழுதுதான். और सबसे पहली बार पृथ्वी पर बारिश तब भी हुई थी। அதுவும் மனிதனுடைய அழிவுக்காகவே அது பயன்படுத்தப்படுகிறது. और मनुष्य को नष्ट करने के लिए ही ये सारी चीजों को प्रयोग में लाया गया है। இதை முன்னதாக கண்ட ஆண்டவர் और इन सब चीजों को पहले से ही परमेश्वर जानते हैं। தான் படைத்த படைப்பில் ஒரு பகுதி மனிதனுடைய அழிவுக்காக பயன்பட போகிறதே என்று கருதின போது அந்த தகப்பனுடைய மனம் அது நல்லது என்று சொல்ல தோன்றவில்லை. जब परमेश्वर जानते हैं कि मैंने जो चीज की सृष्टि की है ये मनुष्य को नष्ट करने के लिए एक दिन अवश्य होगी, तो ऐसा जब वो जानते हैं अपनी दैविक नजर में, उसके बाद उस पिता के मन में इतना दया आया कि उन्होंने पृथ्वी को रचने के बाद नहीं कहा था कि पृथ्वी भली है। ஏனென்றால் அவர் துன்மார்க்கன் அழிந்து போவதை விரும்புவதில்லை. क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी लोग जो है नष्ट हो इस पृथ्वी पर। அவன் மனம் திரும்பி பிழைப்பதையே விரும்புகிறார். क्योंकि वो चाहते हैं कि हर एक अधर्मी जो है नष्ट ना हो, बल्कि मन फिराव करके परमेश्वर के मान में आए। அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் वैसा जो हमारा परमेश्वर है, பாவிகளாக இருந்தாலும் துன்மார்க்கர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் அழியக்கூடாது என்று விரும்பின தந்தையாகிய கடவுள் चाहे हम पापी हो या चाहे हम अधर्मी हो, लेकिन हम सबकी भला चाहने वाला पिता परमेश्वर தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை केवल एक ही अपना जो लगता पुत्र था, நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை हमारे जो रक्षक यीशु प्रभु हैं, நொறுக்கும்படி சித்தம் கொண்டார். उन्होंने उनको तोड़ने के लिए, मारने के लिए, बलिदान होने के लिए सौंपा गया। ஏசாயா 53ஆம் அதிகாரத்தில் 10வது வசனத்தில் அதைத்தான் நாம் வாசிக்கிறோம். और इस बात को हम पढ़ते हैं एशिया नबी की किताब में 53वें अध्याय में 10वां पद। அவரை நொறுக்க சித்தமானார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. तो यहाँ पर जो है यहोवा उनको पूरी तरीके से बलिदान के लिए सौंप दिया गया था, दोष बलि के लिए सौंप दिया गया। பிதாவாகிய தேவனால் கைவிடப்பட்டவராக குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தொங்குகிறார். என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று கதறுகிறார். और अपना पिता के द्वारा त्यागा गया, तजा गया, उसके बाद अपनी सूली पर लटकते हुए परमेश्वर यीशु मसीह जो है यही प्रार्थना करते हैं कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दी। மனதை கல்லாக்கி கொண்டு உங்களுக்காக எனக்காக தம்முடைய குமாரனை கைவிட்டார். अपने दिल को पत्थर बनाकर परमेश्वर जो है, पिता जो है, सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए अपने पुत्र को त्यागा அதில் அவர் பிரியம் கொண்டார். और उन्होंने इस बात पर प्रीति रखी थी, प्रेम की है। ஆகவே இந்த காலை நேரத்தில் இந்த திருவிருந்திலே பங்கு பெறுவதற்கு வந்திருக்கிற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த மாபெரும் தியாகத்தை நம் மனதிலே நினைவு கூறுவோம். और इसीलिए इस संदर्भ में जब यहाँ पर हम मौजूद हैं, इस प्रभु भोज में भाग लेने के लिए इन सब बातों को अपने जहन में लाते हुए, स्मरण करते हुए आप इसमें भाग लें। அந்த சிந்தனையோடும் நன்றி உணர்வோடும் திருவிருந்திலே பங்கு பெறுவோம். आप इसी स्मरण के साथ, इसी ध्यान के साथ और धन्यवाद देते हुए इस प्रभु भोज में हिस्सा लें। தேவநாமம் மகிமைப்படுவதாக. प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा